Good evening, everyone, and welcome to today's session of NutriLift 360. Today, we bring to you an insightful session on the harsh realities and dietary facts. Are all fats really bad? Are we having enough or are we having too much? What is the correct ratio of omega 3 versus omega 6 that we should all be consuming? To understand all this and much, much more, it is my honor and privilege to invite Farooq Tarapur. He, ladies and gentlemen, is an Olympian, a two-time world champion in sailing, and has had an active 40 years. He's won innumerable awards, including the Chhatrapati Shivaji Award and the Arjuna Award. But most importantly, he's a mentor to each and every one of us on the group with the mission Har Ghar Healthy, Har Ghar Medicine. Let's welcome him onto this virtual stage and listen to him very, very carefully. Over to you, Farooq. Thank you, Ruchita, and good evening, everyone. Welcome to this exciting Monday session. I just hope that you had an early dinner, did some exercise, because there is nothing worse than having a late night dinner and then going to sleep without, any exercise and having a sedentary lifestyle. These habits, once you incorporate it into your daily lifestyle, you will notice that your health, will improve dramatically. Today, we are very fortunate because we are going to be hearing about a topic which is very dear to my heart. It's about omega-3. Now, omega-3 is such an amazing nutrient that it takes care of so many things that I can assure you that not even, a week session just on omega-3 can do justice to it. There are so many things that omega-3 is required for. And one of the things that come to my mind is this amazing research work done on the Eskimos, that why do these Eskimos, not fall prey to cardiac problems? They eat a lot of fat, but yet, they don't seem to be having cardiac problems. And what is the real reason? And when the researchers found out that by default they were consuming a lot of salmon, and salmon is one of the fish which is extremely high in omega-3. Because they were having salmon by default, they were really safe against cardiac problems. Now, the ratio between omega-3 and omega-6, now, if you consider omega-3 as good fats and omega-6 as bad fats, the ratio at worst should be around 1:5 or 1:6. That means if you're consuming 6 grams of omega-6, you should consume at least 1 gram of omega-3. Now, if you look into the Indian diet, it is very rare that people really get omega-3, and hence there's a big deficiency. And because of this deficiency, we get a lot of inflammation problems, we get all kinds of lifestyle problems. In order to bridge this gap, you need to be very, very careful as to which supplementation program you're involved with, because there are a lot of, products available on the market which are not really good, not from the right source. So be very careful. And that's one of the reasons why we are so excited about the product coming from Nutrilite, because they take great care to ensure, the purity, consistency, and the potency of the product that you get. Now, omega-3 is something that you just can't, your body doesn't make. So you need to have it on a regular basis. And it is virtually impossible to get it from our diet. And that is why there's an extreme need, to supplement this. It is a product which is also, very well tested. And if you take the NFSU certification or the NSTS solution, you will realize that this product can really bridge that nutritional gap, that you may be lacking or you may be deficient in. So listen to, Raj very carefully, because
he did a lot of work on this Nutrilite Omega 3, and then he did a lot of demos, and he realized that, wow, what a wonderful product this is, and how it can really impact, your overall health. So over to you, Raj. Thank you very much, Farooq, and good evening, everybody. As introduced, I'm Raj, connecting to you all from Gurgaon. And as Farooq rightly said, that this is very, very important topic, because fats एक ऐसा word है जो fear भी उतना ही डालता है जितना वो important है. I mean, आप अपने brain से लेके nervous system सब जगह देख लीजिए, it is all made of fats. So fats is a very, very important thing in our body. But at the same time, fats एक इतना fearful है because these days हम डेली सुनते हैं आजकल कि सो एंड सो डाइड ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, या वो कल तक तो एकदम ठीक थे लेकिन आज वो सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया. एंड कंटिन्यू टू शेयर द स्क्रीन. ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज फैट्स जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन भी है इसके बारे में, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मिथ एंड फैक्ट्स अराउंड इट. सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे, ऑल्दो दिस इज नॉट द, मैं ये बोलूंगा कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, बट इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड हाउ वी कैन टेक बेटर कंट्रोल ऑफ आवर हेल्थ, एंड स्पेशली ऑल दिस कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल, अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस. नाउ बॉडी में अगर आप जो भी मेजर अगर आप डिसीज सोचते हो, कहीं ना कहीं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रोल है, एंड कहीं ना कहीं फैट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो लेट्स अंडरस्टैंड, राइट, व्हाट आर दिस फैट्स. नाउ it is yeah, all good. Okay, so it is one of the key nutrient which is essential for our daily living. uh, it is concentrated source of energy, and fats are a subset of lipids. So इसीलिए जब आप अपनी अपनी लिपिड प्रोफाइल आप टेस्ट कराते हो तो उसमें आपके फैट्स के रिपोर्ट आते हैं. Normally what we do, we see the range which is mentioned on the right side of the numbers that we get, and कहीं ना कहीं हम उस range को देखते हैं and we feel good if it's within the range. But the right way to look at this fats is the ratio what you see over there. और आज मैं कुछ टिप्स, कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा यहाँ पे. Fats are like our body's backup battery. They are also a very essential source of energy to the body. So जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, बॉडी स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, राइट. इसीलिए बॉडी वो फैट्स को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर एनर्जी. जो भी चाहिए बॉडी उसको स्टोर करता है. इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस ऑफ फूड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. लेकिन जब आप गट हेल्थ के बारे में स्टडी करोगे, ये वन ऑफ द सेशंस दैट वी विल डू, देयर यू विल अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ फैट थ्रू प्लांट बेस्ड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग इट थ्रू एनिमल सोर्स ऑफ फूड, राइट. नाउ फंक्शंस क्या है फैट्स के? ये एनर्जी स्टोर करता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. बॉडी जो हम फूड खाते हैं उसमें से एनर्जी के सोर्स में इसको निकाल के स्टोर करता है फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. इसीलिए फारूक बार बार बोल रहे थे, आई होप यू हैड अ अर्ली डिनर, बिकॉज इफ यू आर हैविंग अ लेट नाइट डिनर, बॉडी विल टेक आउट फैट, इट विल स्टोर, बट बॉडी इज नॉट कंज्यूमिंग द एनर्जी. सो over a period of time, as a consequence, what you will see that your cholesterol level is going high. Now there is a lot of kids these days that you will find जो late night तक study कर रहे हैं, late night eat कर रहे हैं, despite doing everything correct, you will find that suddenly their cholesterol level is very high. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट जो फारूक अभी शुरू में बोले दैट आई होप यू हैड अ अर्ली डिनर, ये रिलेवेंस इसके साथ है इसका. सेल के फंक्शन में रोल प्ले करता है ब्रेन. आई मीन योर ब्रेन में इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है. इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, लाइक इंसुलिन रेजिस्टेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में है, हार्मोन प्रोडक्शन में है, कुशनिंग अराउंड द सॉफ्ट ऑर्गन्स. आप हार्ट, लिवर, किडनी और ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, उसकी कुशनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. रेगुलेटिंग हंगर एंड सैटिस्फैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. A lot of time ये पॉइंट निकल के आती है for people say that I have this late night craving, and the late night craving is also because of the late night dinner that you are having. So जो hunger regulation में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर आप देखिए मोटा मोटा ओवरऑल फैट का जो रोल है वो हमारे बॉडी के हर फंक्शन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, एंड हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Now, this is a very interesting slide. Dietary fat, non-essential fats, and basically ये जो dietary fat, essential fat, right? Now, main thing to know, understand over here is जो saturated fat है और जो trans fat है, ये दोनों हमारे LDL जो bad cholesterol है उसको ऊपर ले जाता है.
एंड कहीं ना कहीं जो ट्रांस फैट है ये वो फैट है जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है। सैचुरेटेड फैट है जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जब आप इसको खाते हो, एंड इज ऑल्सो सिंथेसाइज इन द बॉडी। बट द मेन थिंग इज जो आपके मोनोसैचुरेटेड फैट है, लाइक इसके सोर्सेस अगर आप देखोगे तो कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल, एवोकाडोस, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कहीं ना कहीं इसका जो रोल है ये आपके लिपिड प्रोफाइल में जो एलडीएल है उसको लोअर करने में मदद करता है। Polyunsaturated fat, basically, they are liquid at room temperature. These are the sources that you see. And there are two types, which is omega 3 and omega 6. So क्यों ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है? बहुत बार हमने सुना है दैट हमारा डॉक्टर ये बोलता है कि आप एक ऑयल पे स्टिक मत करिए, आप उसको चेंज करते रहिए। सेकेंड चीज, कहीं ना कहीं हमने मिथ और फैक्ट दोनों सुना है कि कहीं ना कहीं ऑयल गुड और इज ऑयल बैड, सो देर इज नॉट अ वन लाइन आंसर फॉर इट। अगर आप देखिए तो ओवरऑल दे प्ले इन आवर हेल्थ रेजिमे, ओवरऑल दे हैव अ रोल टू प्ले ओवर देयर, राइट? नाउ डाइटरी फैट्स जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। नाउ मेन जो आपने यहाँ पे समझना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट देर इज अ रेशियो ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो हमारे बॉडी में प्ले करता है। नाउ आइडियली दिस रेशियो नीड्स टू बी 1:7 ratio, I'm saying, right? So if you have 1 unit of omega 3, you have anything like between 4 to 10, average is 7. So this is the balance जो आप देखते हो omega 3 और omega 6 का। लेकिन बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट्स, ये जो बैलेंस है ये बैलेंस बिगड़ गया है। फॉर अ गुड हेल्दी इंडियन द रेशियो इज समथिंग अराउंड 1:70 दिस डेज। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड हेल्दी इंडियंस, विच मीन्स वो फिट अपने आप को क्लेम करते हैं। उनका अगर आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 का अगर आप रेशियो देखेंगे तो दैट इज लाइक समथिंग अराउंड 1:70। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है जो ओमेगा 6 को उसको लोअर डाउन करने के लिए, ये मत खाओ, इसको कम कर दो, वो खाना बंद कर देते हैं, राइट? एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, आपको ओमेगा 6 रेशियो ऊपर चला जाता है, जिसके वजह से वेरियस ब्लॉकेजेस, ट्यूमर, ये सारे रूट कॉज जो है वो इसके वजह से होता है, दिस बैलेंस के वजह से। Now, when you incorporate omega 3 in your meal diets, that's where the balance come down. So, for example, जब आप अपने omega 3 रेशियो को जब आप ऊपर लेके जाते हैं, you make it like 10:70. Ideally, it is becoming 1:7. That's when you see a great health benefits जो आपके हेल्थ में आता है. So, omega 3 is the missing element in our diet and hence it needs to be supplemented. नो बहुत सारे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला जाता है वो उसको कंट्रोल करने की जाते हैं, या ब्लॉकेज हो जाता है या ट्यूमर क्रिएट हो जाते हैं। मेन थिंग टू फोकस ओवर हियर इज हाउ यू आर ब्रिजिंग द गैप जो बॉडी में है ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। एंड हेंस फरूक अभी शुरू में जो सैमन फिश के बारे में बात कर रहे थे कि क्यों वो इंपॉर्टेंट है, एंड सैमन फिश में सबसे ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। जो ये बैलेंस होता है ये आपके बैलेंस को क्रिएट करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ टुनाइट, एंड हेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाए हैं उसके साथ जरूर बैठ के डेमो देखिएगा कि ओमेगा 3 के सोर्सेस क्या क्या हैं, आपको कितना चाहिए ओमेगा 3 के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आई मीन राइट व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट, राइट फ्रॉम दैट एज जब तक द किड इज बॉर्न एंड द किड इज एन एडल्ट, एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ यू नीड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन योर बॉडी। So this is the most important thing. Important to maintain is the balance ratio of omega 6 to omega 3 fatty ratio, right? ये इनके roles है that they play करते हैं। Now sources, marine source बहुत important है इसमें, which is like fish, salmon fish, flaxseed में, अलसी, चिया, walnut में भी पाया जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा important है ये जो EPA और DHA का जो balance है ये होना बहुत important है। Now, ओमेगा 3 प्लांट सोर्स से भी मिलता है, बट द अनफॉर्चुनेट एलिमेंट इज उसमें ये एपीए डीएचए का बैलेंस नहीं बन पाता है। एसोसिएटेड विद वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स, हार्ट हेल्दी, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड ब्रेन फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ओमेगा 6 सोर्सेस आर एग्स, वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल, फ्लेक्सीड, ये सारी चीज़ों में पाया जाता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स एंड हार्मोन सिंथेसिस। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट ये रेशियो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमारे स्पेशली इन आर इंडियन डाइट, एंड स्पेशली पीपल हु आर नॉट लिविंग अ कोस्टल एरिया में, जो लोग नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल वी लिव इन दिल्ली, हमें ये जो सी फिश है ये मिलना और भी रेयर होता है। वी डोंट गेट फ्रेश कैच, एंड दैट्स द रीजन। अगर आप देखिए तो जो ओमेगा 3 की डिफिशियंसी है बहुत हाई है, right? Sources of omega 3 fatty acids, now plant based sources, majority is in the form of ALA, limited conversion, limited bioavailability. So basically क्या होता है, जो
कन्वर्ट करना है इसको, वो चीज़ नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि ये मेनली एएलए फॉर्म में पाया जाता है. नाउ न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल, मोर सस्टेनेबल एंड हैव अ लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. लेकिन जो मरीन सोर्सेस है, इसमें ईपी और डीएचए दोनों पाया जाता है. नो, जो इसके सिंथेसिस है, जो आपकी बॉडी इसको ऑब्जर्व करती है, वो बेटर तब करती है जब व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ ईपी एंड डीएचए. सो ये लाइन, जो पहली लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो थोड़े से नट्स खा ले रहे हैं, या आलमंड्स खा ले रहे हैं, या फ्लेक्सिड खा ले रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनको ओमेगा 3 का जो सोर्स है वो पूरा हो जा रहा है. And unfortunately, the answer is no, because it needs to be in the form of EPA and DHA, and the plant source don't have that. डायरेक्ट कंजम्पशन एंड कन्वर्जन, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. प्रोवाइड प्री फॉर्म्ड ईपी एंड डीएचए डायरेक्टली यूटिलाइज. न्यूट्रिएंट प्रोफाइल गेट्स हाई क्वालिटी प्रोटीन, ओवर फिशिंग एंड हार्म मरीन इकोसिस्टम. सो ये इसके मेरिट एंड डीमेरिट है, राइट? बट दिस इज व्हाट इट इज. नाउ बैलेंस बिटवीन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि जो ओमेगा 3 है इसका रेशियो क्या होना चाहिए, ओमेगा 6 का रेशियो क्या होना चाहिए. और जो ये रेशियो है, जब ये रेशियो गड़बड़ा जाती है आपके बॉडी में, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. So, for example, a young kid with a cholesterol high will not have the same impact where a older person is having. And probably the reason why this cardiac arrest suddenly, like today morning also, I got a news, not today morning, in fact, last evening, that one of a friend, he lost his dad and there was this sudden cardiac arrest. ये क्यों हो रहा है कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है? पहले हम ये सुनते थे कि पेशेंट डॉक्टर हॉस्पिटल तक पहुंच जा रहा था, बट अभी ये बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि सडनली इट्स लाइक ऑन द स्पॉट डेथ. And one of the key reasons is because we have not understood how the body function when it comes to fats. So it is very important to understand, know, and implement in your lifestyle practices. Impact of an imbalanced fat. अब ऑब्वियसली इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? आई मीन बिना ये स्लाइड देखे भी हम बता सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जाएगा, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, आपके लीवर फंक्शंस में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे, यू विल बी प्रोन टूवर्ड्स दिस ट्यूमर्स एंड ऑल दो स्टफ, यू नो. इवन आपके अगर नी में पेन है, वहां पे भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रोल है. अगर आपको नी रिलेटेड इश्यूज है, उसमें भी ये रोल प्ले करता है. So, 53% of the deaths in India are due to the non-communicable diseases. Now, that's a fact. Number of obese men versus women, ये कैसे कैसे बढ़ते जा रहा है. Now, these are some of the, so obesity में भी इसका बहुत बड़ा रोल है जो ये प्ले करता है. वेट मैनेजमेंट में, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जब सटाइटी और हंगर मैनेजमेंट में कैसे काम करता है. सो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपके वेट मैनेजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यू नो. Now, include healthy fats in your morning nutrition. Very, very important. Now, why morning nutrition में omega 3 fatty acids along with vitamin, mineral and protein becomes very, very important. Now, the answer is very simple. You know, अगर आप अर्ली डिनर कर रहे हो तो बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल डैमेज है, उसके लिए बॉडी को जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करना था, ये पूरा रात को होता है. एंड व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, you are nutrient deficient. And hence, it is very important that in the morning, along with the other nutrient, you have omega 3 fatty acids in the right quantity that your body needs. And hence, it becomes very important. आप सोच के देखिए, हम में से कितने लोगों के पास ये एक्सेस है कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में हम सैमन फिश खा रहे हैं या मैक्रेल फिश खा रहे हैं. कितने लोगों के पास ये ऑप्शन अवेलेबल? इट्स नॉट देयर. And probably that is one of the reasons why our omega 3 fatty acid का जो लेवल है वो बहुत लो है. देखिए, यू नो, आज से पहले जब हम हिंदुस्तान में रहते थे, 30-40 साल पहले, हमारे स्ट्रेस लेवल इतने हाई नहीं थे. हमारे अदर जो डैमेज होता था जो बॉडी को, यू नो, इफ सपोज यू गॉट अ वीक बीम, आपका घर बना है लेकिन उसके जो पिलर्स है वो वीक है, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट व्हेन देयर इज अ इशू, लाइक फॉर एग्जांपल अ माइल्ड अर्थक्वेक, उस समय पता चलेगा फाउंडेशन का क्या इंपॉर्टेंस है. सो आज से 20-30 साल पहले हमारे अदर फैक्टर्स जो हमारे हेल्थ को इंपैक्ट करते थे, ये इतने सीवियर नहीं हुआ करते थे. सो इवन पीपल विद लाइक ऑल दिस इम्बैलेंस के साथ वो काम चल जाता था. आज की तारीख में द अदर फैक्टर्स जो इंपैक्ट करता है हमारे हेल्थ में, वो इतने हाई है. बी इट स्ट्रेस, बी इट sleep, be it the work that we are doing, be it the mental stress that we carry every day. इसके वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉर्निंग में when we get up and when we start our day, our nutrition needs to be at optimum level, right? So
न्यूट्रिएंट डिप्लीट होता है, लेस होता है, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ना है, आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इज हाई व्हेन ड्यूरिंग द योर मॉर्निंग टाइम, एंड हेंस जो आप, क्योंकि आप दिन की शुरुआत करने वाले हैं तो जो आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर है ये बहुत हाई होने वाली है। इसीलिए सुबह में जो आपका न्यूट्रिशन लेवल है along with other stuff which is protein, vitamin, mineral के साथ फैट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ऑयल एंड फैट। नाउ रीहीटिंग ऑयल एंड इफेक्ट ऑन द बॉडी। नाउ ये कुछ कुछ चीजें जो मिथ सुनते आइए उसके फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। रीहीटेड ऑयल कंजम्पशन में लीड टू डैमेज टू द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड कैन गिव टॉक्सिक इफेक्ट टू अवर बॉडी, इसीलिए बोला जाता है कि रीहीटिंग नहीं होना चाहिए। Hidden fats. Baked food items still have vegetable oil, even if they are labeled as zero trans fat. Recently, I was having a discussion with is bread good or bad, and bread भी तो wheat से ही बनता है, तो अगर उसमें क्या फर्क है। बट अगर आप ये देखें उसके लिए बहुत सारी ऐसी हिडन फैक्ट्स होती है जो शायद लेबल भी नहीं मेंशन करता है। And unfortunately, in India, our health standards are not that strong and that high. Like in India, even with अगर आप उसमें केमिकल भी डाल देंगे तो भी एक पर्टिकुलर लेवल तक यू कैन क्लेम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। सो बहुत सारी ऐसी चीज है जो इम्पैक्ट करती है, तो इवन जो लेबल आप पढ़ रहे हो इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, एंड नॉट एक्यूरेट इन द टर्म्स की उसको वो कम्युनिकेट करता जो उसको करना चाहिए। Cold press oil is the traditional system of taking out oil in India, right? Cold press north सरसों खाता है, वेस्ट वेस्ट और साउथ कोकोनट, मूंगफली, ये सारी चीजों को खाता है। सो our traditional system is the cold press oil in India, and now the studies are showing that the cold press oil retains more of the natural flavor and nutrient of the oil than the double refined or the refined oil. Correct? Anything that is made in a factory is not good because उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, उसको 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 एडल्ट्रेट किया जा रहा है, उसके अंदर वो प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, उसके अंदर लाइक अगर आप ये रिफाइंड ऑयल के बारे में देखेंगे तो उसको ब्लीच, अगर आप सिर्फ उतना ही स्टडी करेंगे उसको ब्लीच कैसे किया जाता है, शायद आप वो फैक्ट्री की बनी हुई ऑयल खाना छोड़ दोगे, राइट? So refinement improves impurities and odor. It also removes some of the natural nutrient from the oil. Exactly what I was just saying. जो फैक्ट्री में बनता है, मास प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री में उसको बना तो देते हैं, लेकिन आप उसके बहुत सारे अदर इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, जो हमारे को होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। Now, the harsh reality of how high sugar, high fat, processed foods, alcohol and smoking can damage your body and health. शुगर तो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप एक चीज, अगर आपने 5 चीजें अपने डाइट में से अगर आपको चेंज करना है, नंबर 1 इज शुगर, सेकंड इज मैदा, थर्ड इज रिफाइंड ऑयल, फोर्थ इज चिकन, एंड फिफ्थ इज व्हीट। अगर ये 5 चीजों में आपने कंट्रोल कर लिया, मोर देन 90% आपका हेल्थ आपके कंट्रोल में है। तो आइए देखते हैं शुगर और ये सारी चीजें हमारे हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है, राइट? नाउ ये कुछ फूड आइटम्स है, और अगर आप देखेंगे तो बहुत बार हमें लगता है कि इनमें तो शुगर ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जूस की बोतल अगर आप देखेंगे, ऑल्दो वो लिखा भी रहेगा 100% रियल, 100% फ्रूट जूस, दिखने में ऐसा क्लेम लगता है कि वो तो एकदम ही परफेक्ट है, बट जब आप उसके लेवल में जाके स्टडी करेंगे, सो लेस देन 10% उसमें एक्चुअल नेचुरल जूस होता है, बाकी सारा इट इज ऑल फ्लेवर्स, शुगर, अदर स्टफ दैट हैज बीन पुट इनटू दैट। बहुत बार मैंने ऐसे एक डब्बे पे देखा था आलमंड मिल्क, हमारे घर में अगर कोई कोई हमें गिफ्ट देके गया था, और जब मैं उसके अंदर पढ़ा तो हार्डली देयर वाज लाइक लेस देन 3%, द एक्चुअल आलमंड मिल्क वाज इन इट, द रेस्ट 97% वाज वाटर एंड अदर स्टफ दैट दे हैड पुट इनटू इट। सो वंस यू सी ऑल दिस, जो भी ये सॉस बॉटल ले लीजिए, जूस ले लीजिए, या बहुत सारे जो ये क्लेम करते हैं, जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर की जो शुगर लेवल है वो बहुत हाई है, राइट? समटाइम्स यू माइट सी इट कि ये तो नेचुरल है, 100% रियल है, बट अगर आप उसके शुगर कंटेंट देखोगे तो बहुत हाई है। तो आइए देखते हैं शुगर का इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे कैसे पड़ता है। ये जो सीरियल्स है, फोर्टिफाइड वाटर्स, आप देखिए ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, सो जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है ये मार्केट, सो अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत ध्यान से ना न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और इंग्रेडिएंट में फर्क दिखता है। वो फैक्ट्स को ऐसे प्रिंट करते हैं कि आपको देखने में लगेगा कि वही उसके अंदर है, बट वो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के नाम पे आ जाता है, तो दैट डजंट मीन कि इट इज कैरिंग दैट। और एक्चुअल जो वो कैरी करता है बहुत छोटे से अलग से उसमें लिख के देते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हाई शुगर इन अ बॉडी? Addictive habits that can persist till adulthood, number 1.
right? Negative effect on overall health, nutrient deficiencies, and an increased risk of chronic diseases. This is what sugar can do to your body. Negative impact on your liver health, mood swings. Sweet foods can be more addictive and can result into greater depression, accelerated aging. मुझे पहले बहुत प्राउड फील होता था कि मैं एक बार में 3-4 लड्डू खा लेता था। जब से ये सारे हैबिट्स हमने बिल्ड किए, नाउ आई कैन मेक दैट माइंडफुल चॉइस व्हाइल ईटिंग, यू नो। सो यू नीड टू बी लाइक, हम ये नहीं बोल रहे कि एकदम सन्यासी बन जाओ, बट ये डेफिनेटली बोल रहे हैं मेक द राइट चॉइसेस। हर चीज का सब्स्टिट्यूट है। पहली बार आई मीन व्हाई डू यू नीड इट करके, सो जब आप अपने आप से ये जेन्युइन सवाल पूछेंगे, डज योर बॉडी रियली नीड इट और इट इज जस्ट अ टेस्ट जो आपको थोड़ी देर का मजा दे रहा है। सो जब आप ये डिफरेंशिएट करना सीख लेंगे, आप सही चॉइसेस करना सीख जाएंगे। इम्पैक्ट ऑफ हाई शुगर फूड ऑन आवर गट हेल्थ, इम्बैलेंस इन द गट बैक्टीरिया, आपके गट बैक्टीरिया को इम्बैलेंस बना देता है। और गट हेल्थ में हम इसको डिटेल्ड में कवर करेंगे कि जब आपका गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाता है, दैट इज इनफ फॉर यू टू, दैट लीड्स टू ऑल द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, यू नो। डिसरप्शन ऑफ गट मोबिलिटी, इंक्रीज रिस्क ऑफ गट डाइसाइबोसिस, वेट गेन में बहुत ज्यादा ये असर करता है और वेट गेन इसके वजह से कॉज करता है। हार्श रियलिटी ऑफ प्रोसेस फूड, यू नो, नाउ ब्रेड एक बहुत बड़ा डिबेट है हर घर में कि इज ब्रेड गुड और बैड, एंड समवेयर कहीं ना कहीं हम वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस लाइफ दैट वी हैव, कहीं ना कहीं हम उसको एक्सेप्ट कर लिए कि ब्रेड तो होल व्हीट ब्रेड, दिस व्हीट ब्रेड, दैट टाइप ऑफ ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, you know. The point is very simple. Bread is not good, be it in any form, because it is not in its natural form. अगर कभी भी ये चॉइस करने को मिले, वो सही है कि गलत है, आंसर बड़ा एक ही बड़ा क्लियर है। कोई भी चीज जो फैक्ट्री में बनी है वो सही नहीं है, और बिकॉज वो सही नहीं है, सूनर और लेटर योर इट इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी। सो दे लैक न्यूट्रिएंट। नो, बहुत बार ये होता है कि मल्टीग्रेन ये वो, बट अगर आप एक्चुअली उसकी लेवल स्टडी करने को जाएंगे, एक्चुअल लेवल स्टडी करने को जाएंगे, आप देखेंगे कि वो जो कंटेंट लिख रहे हो बहुत ही थोड़ा है, बट उसके जो नेगेटिव एलिमेंट है वो कहीं बहुत ज्यादा है। इसमें वेजिटेबल ऑयल डाला जाता है, इसमें मैदा डाला जाता है, बहुत सारी ऐसी प्रिजर्वेटिव्स डाली जाती है जिसके वजह से इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। सो एनीथिंग दैट यू आर नॉट कुकिंग, नाउ द सेकंड क्वेश्चन कम्स कि आज के फास्ट पेस लाइफ में आप कैसे करेंगे? द आंसर इज समवेयर वो जो फूड है, हम ये लाइफ को फास्ट पेस बनाने के चक्कर में हमने वो फूड से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। दैट इज द रीजन टुडे बहुत सारे लोग इतने सारे क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहे हैं। And the right thing is you need to create a balance. Food cannot be compromised, because if today you don't give importance to food, tomorrow you are going to eat medicine like food. मेरे फ्रेंड है, वो ऐसे पोटली खोल के दवाई ऐसे खाते हैं जैसे हम खाना खाते हैं। सो यू नो, डोंट डिबेट विद ऑल दिस सब्जेक्ट्स, इट इज इंपॉर्टेंट, आप मत डिबेट करिए इनके साथ। आर्टिफिशियल एडिक्टिव्स, इम्पैक्ट ऑन डाइजेस्टिव हेल्थ, इम्बैलेंस गट माइक्रोबायोम, एडिक्टिव नेचर, हिडन इंग्रेडिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिडन इंग्रेडिएंट, और इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ता है। हार्श रियलिटी ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, सिंपल, आपके लीवर पे इंपैक्ट करेगा, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे इंपैक्ट करेगा, आपके स्लीप डिसऑर्डर्स पे करेगा, आपके हार्मोनल इंबैलेंस में इंपैक्ट करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये करेगा। तो आई विल नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस, बट यू नो वी ऑल नो कि इसके इंपैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं, और जब ये थोड़ा ज्यादा हो जाए तो और भी ज्यादा फाइनेंशियल एंड अदर स्टफ इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। Harsh reality of smoking, again, it is not good. I mean, I'll not get into detail. I mean, we all know the facts about it. So uh, इट इज अ चॉइस, यू नो, इट इज अ चॉइस। एंड अगर आपको लगता है, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कम्युनिटी, व्हाट्सएप और जो सारी चीजें होती है, बेस्ट पार्ट इज ये हर कदम पे आपकी मदद करता है आपको राइट चॉइसेस करने को। सो दिस सेशन दैट यू आर सीइंग टुडे, वी हैव एवरी मंडे एंड फ्राइडे, व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ द व्हाट्सएप कम्युनिटी, यू सी आर हेल्थ बडीज हेल्पिंग यू, हैंड होल्डिंग विद द डे, एंड वो जो डेली एक्टिविटीज होती है उसके साथ में, ताकि ये जो सब्जेक्ट है हेल्थ, आप इसको अच्छे से समझ सके। एंड देन नेवर एवर यू हैव टू वरी अबाउट फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज फ्यूचर आपके कंट्रोल में होगा। द होल पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू हेल्प यू build a healthy lifespan along with the lifespan. So health span or lifespan needs to go hand in hand. For example, मेरा गोल है I should be living till 100 years of age, and till my last day I should be medicine free. So this is what you understand जब आप ये चीजों को करते हैं। सो स्मोकिंग का इम्पैक्ट क्या है? आपके फिजिकल अपीयरेंस में फर्क पड़ता है। सेकेंड हैंड स्मोक अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द पीपल अराउंड यू, इट कैरीज द हेल्थ रिस्क, एक्सेलरेट्स द एजिंग प्रोसेस, impaired मेटाबॉलिज्म एंड न्यूट्रिएंट absorption। आप सरप्राइज हो जाएंगे, इस कम्युनिटी में एक पर्सन
जब वो अपने हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कर रहे थे, जस्ट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सिगरेट्स दैट यूज टू स्मोक एवरी डे, उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस में, डायबिटिक हेल्थ में बहुत ग्रेट इम्पैक्ट आया था उसके वजह से, और वो अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाए थे। सो सुनने में ऐसा लगेगा वो स्मोक है, उसका डायबिटीज से क्या लेना देना, बट इसका आपके मेटाबॉलिक हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। डिक्रीज माइक्रोबायोल डाइवर्सिटी, ऑल्टर्ड माइक्रोबायोम कंपोजिशन, सो आपके जो गट हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा इसका भी असर पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ हाई फैट ऑन आवर हेल्थ क्या है? सलाद ड्रेसिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप सलाद ड्रेसिंग्स को अगर आप देखेंगे, जो मायनीज हम खा रहे हैं, अगर ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे, तो बहुत ज्यादा इसमें प्रोसेस्ड फूड, फैट्स, ट्रांस फैट्स होते हैं, विच इज नॉट गुड। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर हैविंग अ सैलड, ट्राई टू हैव ओनली सॉल्ट, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, पेपर एंड लाइम थोड़ा सा उसमें डाल लीजिए। ये सलाद ड्रेसिंग्स को अवॉइड करिए। प्रोसेस्ड स्नैक्स जो आप देखेंगे, ऑल्दो दे क्लेम टू बी हेल्दी स्नैक्स, बट जिस तरीके से इनको बनाया जाता है, उसके अंदर मेनी प्रोसेस्ड फूड्स क्लेम टू बी लो फैट बट आर हाई इन शुगर कंटेंट, राइट? Sugar-free ice creams and sugar-free cookies are sweetened with sugar substitute or artificial sweetener. Restaurant meals, parties, weddings, अगर आप देखेंगे, dishes are prepared with added fats, oils, sauces to enhance flavor. Dairy products, this provide essential nutrient but also contain hidden fats. So, what are the good fats? Like, for example, avocados, eggs, coconut oil, raw nuts, olive oil, salmon, flaxseed, leafy green vegetables, organic butter, organic nut oils. ये अगर आप देखेंगे तो they are good fats. Bad fats अगर आप देखेंगे तो French fries, donuts, cookies, pastries, right? Crackers, processed meats, hydrogenated oils. ये सारे अगर आप देखेंगे तो they are not good. They are like bad fats. So one needs to learn. So sometimes हम इस confusion में रह जाते हैं, हम कैलोरी मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। Now, probably a chocolate or a fruit might be carrying the same set of calories in it, but अगर आप उसके बाकी न्यूट्रिशन कंटेंट देखेंगे तो one is good for the body, the other is not good. So जब आप इस प्रोग्राम में आते हो, आप सही तरीके से जज करना सीख जाते हो, व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट। अदरवाइज ये डिबेट, टुडे वी आर लिविंग इन दिस डिजिटल एरा, और डिजिटल एज में हर किसी को अधिकार है, उसके मन में जो आता है सोशल मीडिया पे जाके ज्ञान दे देना, उसको अधिकार है। दे आर नॉट रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स। आप यहां जो भी देख रहे हैं, हर एक स्लाइड के पीछे की रिसर्च आपको मिल सकती है, कहां से इसको रिसर्च किया गया है, किन साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काम किया है। सो इन दिस डिजिटल एज बहुत ज्यादा ओवर कंफ्यूजन आज की तारीख में क्रिएट हो गया है, एंड दैट्स द रीजन यू नीड अ होलिस्टिक अप्रोच फॉर योर हेल्थ टुडे। बिकॉज ये करें ये नहीं करें, इट इज बिकमिंग लाइक और ज्यादा कंफ्यूजिंग होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। High fats and gut health क्या है? It slowers the digestion. It has got an impact on your gut microbiota. It is it carries the increased risk of gut inflammation, altered gut mobility and bile production and absorption. ये है gut health और high fats का interlink. So supplementation is the right way, because इससे जो omega-3 fatty acids, especially the one that we are getting from Nutrilite, the best part about this, it has got both EPA and DHA in it. So आपको morning में लेना चाहिए and evening में लेना चाहिए, so that morning में the nutrition content in your body is correct and evening में you are maintaining. आप उसको fall करने से आप उसको prevent कर सकते हैं, जो EPA DHA ratio है आपकी body का। Now, do you know that typically the Indian diet may not contain much of the omega-3 fatty acids? In many cases, fish, other seafood, nuts, and seed, as flaxseed, chia seed, walnuts, plant oils such as flaxseed oil, soybean oil, and canola oil go missing altogether. राइट नाउ, ये वो कंटेंट है जो हमारे को ओमेगा 3 डेली चाहिए। लाइक 1600 mg ओमेगा 3 एडिक्वेट इंटेक फॉर एवरेज मेल, एंड फॉर एवरेज फीमेल इट इज 1100 mg ऑफ ओमेगा 3 हमारे को चाहिए। नाउ इसका इसका रोल क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट सपोर्ट्स इन योर हार्ट हेल्थ, इट सपोर्ट्स इन योर ब्रेन हेल्थ, सपोर्ट्स इन जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, राइट? जॉइंट हेल्थ में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट सपोर्ट्स इन विजन हेल्थ, इट सपोर्ट्स इन योर सर्कुलेटरी हेल्थ। सो अगर ये हमारे को रिक्वायरमेंट है, आप कभी गूगल सर्च करके देखेगा आपके दिन भर के डाइट में आप ओमेगा 3 कितना ले रहे हैं, और अगर आप वो नहीं लेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये सारे हेल्थ जो बेनिफिट्स है वो जाके इंपैक्ट होने लगेंगे। उसके वजह से क्या होगा, सूनर और लेटर यू विल बी विजिटिंग अ डॉक्टर। डॉक्टर यही चीज को केमिकली सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन जब आप उसको केमिकली जब आप लेना शुरू कर देंगे, तो ऑल्दो वो इसको तो बैलेंस करेगा, बट वो और 99 प्रकार के अलग
कॉन्सिक्वेंस क्रिएट कर देगा आपके लिए, राइट? आपके लिवर हेल्थ इंपैक्ट हो जाएगी, आपके अलग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, आपका गट हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज आपका गट हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो आपके लीवर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, लीवर के इंपैक्ट पे पड़ेगा तो आपकी किडनी पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो ये ना एक विशेष सर्कल में आप चले जाते हो कि आप एक चीज को तो ठीक करने आए थे, लेकिन जब आप उसको मेडिसिन से सब्सटीट्यूट करते हो, दैट गिव्स राइज टू द अनदर थिंग, एंड देन आप वो हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। इसीलिए अक्सर अगर आप देखिए, सबसे कॉमन जो दवाई दी जाती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिन्स। नाउ आई डोंट नो अगर यूट्यूब इसको ब्लॉक करेगा बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फार्मा, बट ठीक है, मैं बिना नाम लिए बताता हूं आपको। सो क्या होता है, जब हम एक हार्ट रिलेटेड चीज के लिए जब एक दवाई लेने जाते हैं तो बहुत ही कॉमन एक दवाई हमें दे दी जाती है, प्रिस्क्राइब कर देते हैं बहुत आसानी से। सो हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो है ये सबसे ज्यादा वर्ल्ड में है। सो वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा डेथ है वो हार्ट रिलेटेड इशू से सबसे ज्यादा होता है जो वर्ल्ड में है ना। उसके लिए क्या होता है, आप जाते हो, आप एक दवाई खाते हो, आपको आपको डॉक्टर एक दवाई प्रिस्क्राइब कर देता है, आप वो दवाई लेना शुरू कर देते हैं ना। जब आप वो दवाई लेना शुरू करते हैं 3 से 4 महीने बाद आप देखोगे आपकी सेकेंड कॉन्सिक्वेंस स्टार्ट हो जाती है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाते हो धीरे धीरे। और जो डायबिटीज आपको पहले नहीं थी, थोड़े थोड़े दिनों में अगर आप देखोगे तो आपको डायबिटीज रिलेटेड इशू स्टार्ट हो जाती है। सो अब आप एक दवाई खा रहे थे, अब आप उसके साथ साथ डायबिटीज की भी दवाई शुरू कर देते हो। जब आप डायबिटीज की दवाई शुरू कर देते हो तो आपको गट रिलेटेड इशू स्टार्ट हो जाता है, एंड देन यू आर बीइंग गिवन प्रिस्क्राइब द थर्ड मेडिकेशन आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स आफ्टर दैट। सो आप एक खा रहे थे, फिर आप 2 खाए, अब आप तीसरी मेडिसिन खाना शुरू कर देते हो। इसके कॉन्सिक्वेंस के साथ क्या होता है, आपकी जो बोन हेल्थ है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, तो अब आपको बोन रिलेटेड इशू स्टार्ट हो जाता है, तो अब आप चौथी चीज खाना शुरू कर देते हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नाउ योर किडनी स्टार्ट्स गेटिंग इंपैक्टेड, आप वो खाना शुरू कर देते हो। बिकॉज नाउ द ये सारी चीज का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आपका हार्ट हेल्थ और ज्यादा इंपैक्ट होने लगता है, बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। आप नॉर्मली देखेंगे अ पर्सन हु इज ईटिंग अ लॉट ऑफ मेडिसिन, आप उसका देखेंगे उसका पल्स रेट नॉर्मली हाई रहता है, बिकॉज जो मैसेज ब्रेन बॉडी को दे रहा है वो ये दे रहा है कि देर इज नो इनफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, यू नीड टू पंप मोर ब्लड। सो आपका जो पल्स रेट है वो कहीं ना कहीं हाई होने लगता है। सो शुरुआत आप हार्ट हेल्थ के लिए किए थे, एंड अगेन एज द होल साइकिल गेट्स कंप्लीटेड योर हार्ट हेल्थ इज फर्दर गेटिंग इंपैक्टेड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता है, एक चीज जो सबसे ज्यादा कॉमन सुनने को मिलती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। Something that you should have focused in your food, you didn't do it on time. As a result of that, आप एक मेडिकेशन से शुरू हुए, एंड कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो आप उस विशेष सर्कल में फंस जाते हो। एंड दैट इज वाई आप कभी भी किसी का, जब हम सुनते हैं फ्रेंड सर्कल रिश्तेदारों में कि सो एंड सो डाइड ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, और अगर आप उसको सुनेंगे तो कुछ साल पहले द पर्सन जस्ट स्टार्टेड विद वन मेडिसिन। सो हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ ऑल अबाउट। मेरा खुद का अप्रोच हेल्थ को लेके आज से a couple of decades ago was you need to have a good medical insurance, और क्या फर्क पड़ता है अगर बीमार पड़ गए, go just go and see a doctor. Little I realized कि consequence is not that one should visit a doctor in case of emergency and all those stuff, but more important is take charge of your health so that we don't have to see a doctor. ये चीज मुझे बाद में समझ आई थी। So you have a choice, either eat hard or eat smart. What it means is अगर आपको 1600 mg ओमेगा 3 लेना है तो आइए देखते हैं कि अवेलेबल सोर्सेस क्या क्या है। सो प्रोबेबली टू हैव 16 mg of omega 3 one needs to eat 100 eggs. Now I don't know how practical it is to eat 100 eggs or not practical, but more important, अब इमेजिन करिए उसके साथ कैलोरीज जो आप ऐड कर रहे हो 6929 कैलोरीज, और हैव 31 ग्लासेस ऑफ मिल्क। नाउ अगेन वो ओमेगा 3 तो शायद उतना नहीं देगा, लेकिन बाकी चीजें बढ़ा देगा, डेट्स, राइट? 31,000 कैलोरीज। अभी रिसेंटली वी आई विजिटेड अ पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एंड द पर्सन सेड मैं स्वीट के लिए बस थोड़ा सा डेट्स ले लेते हैं हम, लेकिन वो तो ले लेते थे, लेकिन उसके साथ जो कैलोरी होता था और जो शुगर स्पाइक करता था उसका अलग ही इंपैक्ट होता था। तो कई बार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड इन दिस कम्युनिटी, हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस, राइट? अगर आप एक ग्राम्स ले रहे हो तो आपको इतना 46 कप्स लेना है, अगर आप बाजरा ले रहे हो तो आपको 57 कप खाना है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि सैमन से जो राइट मात्रा में ओमेगा 3 निकाला गया उसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं। द बॉडी इज गेटिंग द राइट सेट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड which has a balance of both EPA and DHA. So this is what is important for one to understand, right? Why supplementation is important.
Conclusion: choose wellness over sweetness. Say no to high fat food. From farm to fork, choose fresh, skip the processed. Raise the bar of self love. Quit alcohol, elevate your well being. Free your lungs, reclaim your life, quit smoking today. नाउ ये सब हमने सुना है, ऐसा नहीं कि हम नहीं सुने ये सारी चीजें, बट जब हम आइसोलेशन में किसी चीज को करते हैं, वी आर नॉट एबल टू कैरी दैट मोटिवेशन फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम. बट जब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, यू नो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. जब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, देखिए किसी भी चीज का ग्राफ इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन. कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा. कभी आपका मोटिवेशन ऊपर है, कभी नीचे है. कभी आपके हेल्दी प्रैक्टिसेस होंगे, कभी नहीं होंगे. प्रोबेबिलिटी जब आप आइसोलेशन में कर रहे हो, जब आप लो पे जाते हो, आप हाई नहीं आ पाते जल्दी. इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग दोस प्रैक्टिसेस बैक, वी गेट इनटू सेल्फ ब्लेम मोड. यू नो, हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं और हम बाउंस बैक नहीं कर पाते. जब आप एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हो, जब बेस्ट पार्ट है, नॉट ओनली यू लर्न फ्रॉम योरसेल्फ, इनफैक्ट यू लर्न फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी ऑल्सो. एंड इट इज वेरी इजी इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी टू बाउंस बैक एंड रिक्लेम योर हेल्थ. सो इसलिए जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया, उनको जरूर बोलिए व्हाट इज दिस कम्युनिटी ऑल अबाउट, हाउ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, इमीडिएटली बी अ साइलेंट ऑब्जर्वर फॉर 7 days, 10 days. Understand how people are taking charge of their health just by using this philosophy. So this is the last slide. Start every day with gratitude and optimism. I hope you learned something important today. सिर्फ इतना ही मैसेज अगर आप यहाँ के लेके जाएंगे कि फैट्स का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में, और कैसे ये बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं बनाए आज से, तो कल इसको मेडिसिन से बनाना पड़ेगा. और अगर मेडिसिन से इस बैलेंस को बनाने जाएंगे, तो और 10 और नए खड़े हो जाएंगे. Have your nutrition on time, as Farooq rightly said. I hope you had your early dinner. So ये जो fundamentals है, इसको समझिए. राइट. इंटेंशंस, विजुअलाइज एंड सेट क्लियर इंटेंशंस. आपका हेल्थ गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अच्छी बात यहां है कि आपके जो हेल्थ बडीज है इस पूरे प्रोग्राम में, वो आपकी मदद करते हैं आपके इस इंटेंशंस को सेट करने में, और ये गोल को आइडेंटिफाई करके आपके लिए सेट करने में. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे. इस प्रोग्राम में जब आप आएंगे, तो आप वो छोटे छोटे बेसिक चीजें आप समझेंगे, जो कहीं ना कहीं हमें पता है, बट वो हमें कंफ्यूज स्टेट में कई बार डाल देता. वो फैक्ट्स आप यहाँ पे देखोगे. एंड एक्सरसाइज एवरी डे, डेली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ यू ये फरूक का बहुत अच्छा लाइन है. इफ यू रेस्ट यू रस्ट, एंड इफ यू रस्ट यू डाई. सो डोंट रेस्ट, एक्सरसाइज एवरी डे. सो with this, you've been a great audience. Thank you, and over to you, Ruchita. Thank you so much, Raj, for explaining that so wonderfully. I think everyone's pretty clear on what amount of correct fats are essential and where to avoid it. With that, guys, we come to an end of this session. Thank you so much, and hope you've understood what we're trying to share here. And see you in the next session. Good night, stay safe.